जय माता दी आदेश नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 596th episode of live analysis. So we are very close to hitting the 600 mark, just four more sessions to go. And yesterday I did not come because I was busy. Now today we are going to conduct this live session for the roadmap ahead for Nifty Banknifty stocks. We will cover almost all the asset classes and we will take your stock queries as well. So let us start today's sessions. सभी लोगों का स्वागत है. Good evening, जय माता दी. एंड दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. And all those who wants to register for the next upcoming training that is scheduled on July 10th, you should join as soon as possible. जितना जल्दी आप join कर लेंगे, hardly 8 to 9 days are left, so join as soon as possible so that you can benefit from being in the group. Don't keep it for last day. Last में आप join करोगे तो फिर आपको जो है फायदा नहीं होगा. पहले से आप ग्रुप में रहेंगे तो आपको एक आइडिया मिलता है. And we have telegram group support for 4 months, and we also have one revision class absolutely free. So it's a very value added package that you are getting, and it's a very nice opportunity to learn best way of price action trading. Sabhi ka swagat hai. Good evening, namaskar. How's the josh? So today is 30th of June, so we are winding up with the quarterly closing. Monthly expiry वगैरह हो चुका है, half yearly close जो है हो चुका है. And let us see अब क्या सिचुएशन है मार्केट में. आई कैन सी मैनी पीपल क्राइंग इन द मार्केट कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने को नहीं जम रहा है, क्यों नहीं, एंड ऑल दोस थिंग, क्यों नहीं जम रहा है. आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट मार्केट. इट्स वेरी सिंपल. अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है देन इट इज ट्रबल फॉर यू. अगर आपने सिर्फ कॉल पुट राइटिंग सीखी है, 920 स्ट्रैडल सीखा है, बच्चों वाला काम करोगे तो बड़ों के मार्केट में कट जाओगे. ठीक है, सो लर्न प्राइस एक्शन. विदाउट प्राइस एक्शन यू आर डूम टू फेल. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ग्लोबल मार्केट्स. तो S&P 500 इस समय जो है एक अच्छा कमबैक कर रहा है. इट वेंट डाउन ऑलमोस्ट टिल 3740. नाउ व्हाई इट इज पुशिंग हायर अगेन? सो लेट मी शो यू द बिगर चार्ट ऑफ S&P 500. दिस इज द ग्रेट प्लेस टू बाय द US मार्केट. सो अगर आपको S&P 500 बाय करना है, दिस इज इट. दिस इज द प्लेस टू बाय द US market near 3740 to 3700, and keep the stop loss of 3600 over here, the recent swing bottom. Now we expect that if this level is protected, this is a pullback, and next we are going higher towards 4400. To begin with, 4100 over here and then 4400. So this is the view going forward on S&P 500, and I am very positive on the equity markets going forward. We are still in a larger bear market, but I think before the final assault on the downside, we are going to see a bigger rally to unfold, and then the next downside should come. Now if this view fails, then what will happen is these markets will start a decline immediately to begin the July month on a bearish side. Okay, but if that is happening, we have to keep in mind for a possibility of a swing failed pattern. Now what is a swing failed pattern? For that you will need to attend the training. So if we do not sustain at the lower levels after making a new level, new lows, if we do not sustain, that will be a massive buying opportunity. Okay, so there are two options right now. Number one, assume that this is a fairly decent bottom in the place, and it is a decent bottom in the place. This is the pullback that we are getting. Buy the dip. Okay, keep the stop loss, hope for the best. If this logic works, we are in for a 10% to 12% rally. Now last time also I had advocated the same thing, and US market rallied almost 8.5%. Okay, whereas Nifty rallied only 4.5%. So US market outperformed at that time. Now right now, from tomorrow or from day after tomorrow, I think the Indian markets will outperform the S&P 500. So basically, if you compare your Nifty with respect to the S&P 500, I believe our market can outperform the S&P 500 for next couple of weeks. Okay, so that is why I'm not much bothered when I saw that the US markets were trading lower.
because Nifty will outperform. Nifty will show resilience to the weaknesses in the US market. So that is the perspective with which we are going forward. Okay. Nasdaq की बात करें तो Nasdaq इस समय जो है काफी रिकवरी कर चुका है, बट स्टिल it is also trading lower, and it has also hit a very good level of 11,333. So Nasdaq can also be bought. The recent swing bottom must be the stop losses for all such kind of trades. Now what is interesting today is that there has been no major pullback uh, in anticipation of a quarterly closing, or say half yearly closing or a monthly closing. So we have not seen any kind of a big short covering based rally. That also suggests there are no credible shorts right now in the market. Okay, that may also be the reason that the supply is declining. Okay, that may also be the reason. We will come to know as we move into July. So let's not read too much into it. It can be both a negative and the positive. I'm going with the positive side of it. Now let's have a look at the currency market, the forex market. US dollar trading right now on the lower side, so some profit booking is seen in the US dollar. So if the dollar is being sold, then definitely somebody is buying equities. So probably that's the reason why we are seeing intraday bounce in the S&P 500. So US डॉलर में दोस्तों कोई मेजर इस समय व्यू नहीं है. जो पुराना व्यूज था मेरा कि मे बी वी आर इन अ राइजिंग वेज स्ट्रक्चर, maybe we are going for that final move, that I think that is still possible. Okay, so more or less I think the US dollar has seen a quite an unprecedented rally since so many months. I think right now it is under this saturation type of a structure, rising wedge structure. So I think even if it goes higher, it will be very difficult for it to sustain. It might have it may make the 1 2 3 pattern and then drop. If it doesn't make a new high and then starts to correct, I think that will be a sign that this was the top in place, and we are in for a decent correction in the US dollar, probably heading all the way towards these levels, the highs that were made in the month of or in the mid April, somewhere here. So both these structures suggest that we are in some kind of a fag end move of the in the US dollar. So that is why we are not getting any much clues from the US dollar. Euro USD is bullish, it is bouncing back. British pound is bullish, now it is bouncing back. Now see, this is a very great thing that is happening as I speak. If you guys remember, we were heavily bearish on the Euro INR and the GBP INR, right? Both of these currencies have cracked very, very nicely. Now, on GBP INR, day before yesterday, I had suggested, or probably in the group, I had suggested that I wind up all the shorts. There are no more shorts. In fact, I have long GBP INR. So today morning, we got some decline, and I bought some GBP INR because I think GBP INR is going to outperform. Now, why it is going to outperform as compared to the euro? Because the GBP INR or the British pound, it has already made uh, a new bottom. So I have explained this before also. Let me just upload the chart of British pound. So as we can see, British pound had made a new low as compared to the euro. So I think that its bottom is done. We are seeing some good comeback in the British pound. So if it goes higher, it will be very beneficial for the GBP INR trades. So there's no shorting in these two currencies. I think today morning, whatever lows you got, those are decent enough lows, and I'm not interested in shorting these two currencies anymore. I will prefer to either sit aside or go for long. So I'm already long in GBP INR, and that will be first preference. Euro will be second preference. Now why euro will be second preference? Because of this reason that the euro is sitting on a potential triple bottom. Now this is something which I really don't like. Okay, so this is a triple bottom. Now this triple bottom can become extremely bearish if it fails to cross the resistance. तो अगर ये resistance को तोड़ नहीं पाया, तो फिर ये एक बहुत ही बेरिश स्ट्रक्चर का रूप ले लेगा, एंड देन द यूरो कैन फॉल बिग टाइम. So for now we will go with a range bound perception, with a range bound assumption.
कि यूरो जो है आज के बॉटम से लेके हमें 1.065 समवेयर यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हम ट्रेड करेंगे. ओके, वी विल नॉट फ्रेम एनी बिगर व्यू, वी विल just go with this range bound trading thing, and whichever side it breaks, that side we will go for multi week trending market. If it goes higher we will turn bullish, if it turns down we will again become bearish. ठीक है, सो फिलहाल एक रेंज बाउंड हम व्यू लेके चलेंगे, और आने वाले दिनों में जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस साइड में हम ट्रेंडिंग व्यू फिर से वापस फॉलो करेंगे. ठीक है, सो दैट इज द व्यू गोइंग फॉरवर्ड फॉर यूरो एंड द ब्रिटिश पाउंड. यूएसडी जेपीवाई बहुत ही अच्छी डिक्लाइन आज हमें देखने को मिल रही है. इट इज़ वेरी नाइस, एंड आई होप कि ये कल सुबह तक भी बेरिश रहे. वाई? बिकॉज वी आर लॉन्ग इन द जेपीवाई आईएनआर. सो जेपीवाई आईएनआर जो है बहुत अच्छे जगह पे लॉन्ग है दोस्तों, एंड इफ वी गेट अ बेरिशनेस इन द यूएसडी जेपीवाई तो बहुत अच्छे तरीके से जो है हमें 1 से 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा. So that will be a very easy trade on the JPY INR. So JPY INR जो है ये bullish है, and we are long in JPY INR, and we just need some crack in this USD JPY. The rising wedge structure looks like as if it is almost on the verge of cracking lower. I wish it cracks lower instead of going higher, क्योंकि अगर ये higher जाएगा तो फिर ये जो है 57 का level hit करा देगा. Okay, that is still under the buying zone, so that is still not a big threat, but I would appreciate that it directly goes lower, because I've been holding the JPYNR longs for almost 4 days now, so I want to encash some profit. So let's see what happens. As of now it is looking very nice. If it opens exactly at this level, you can expect 50 paise gap up in the JPY INR. uh, yeah, so that's about the currency pairs. Now let us move towards the interesting part, which is the commodities. दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस बहुत ही अमेजिंग होने वाली है. Let's talk about the crude oil. So crude oil is down massively by 320 points. इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पुराना व्यू था लास्ट वीक का, दैट वाज वेरी क्लियर कि 8000 से लेके 9000 तक का ये हमारा जो है एक जोन है. मे बी 9200 हो जाए, बट ब्रॉडली 8 to 9000 के बीच में क्रूड चलेगा. क्रूड बॉटम एट 8000, क्रूड हिट 9000, एंड अगेन इट इज नो वेयर, राइट. सो बस ये 8000 और 9000 दोनों के बीच का दोस्तों ये जर्नी है, राइट. नाउ क्रूड में इस समय अभी भी क्रूड जो है इसी रेंज में मुझे लग रहा है. मुझे नहीं लगता कि क्रूड 8000 को ब्रेक करने वाला है. अगर क्रूड हमें कल और नीचे के लेवल्स पे दिखा, सपोज इफ वी फाइंड क्रूड नियर 8200 लेवल, देन प्रॉब्ली मोस्ट लाइकली हम जो है क्रूड को बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस बॉटम अगेन फॉर अ टारगेट ऑफ 9200 इस बार हम लेके चलेंगे. ठीक है, सो आई थिंक क्रूड 8000 से 9000 के बीच में रहने वाला है. 8200 के पास आता है तो इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा है. स्टॉप लॉस आपका ये कैंडल है, एंड टारगेट विल बी ऑल्सो बिग. टारगेट विल बी 9000 to 9200 लेवल्स. सो दोज हु कैन अफोर्ड टू ट्रेड थ्रू कॉल ऑप्शंस, आप उससे जो है ट्रेड कर सकते हैं. फ्यूचर्स में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की होगा. नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में थोड़े दिन पहले मैंने एक लॉन्ग सजेस्ट किया था, विच वेंट वेरी नाइस टिल 543, बट टुडे वी आर गेटिंग अ बेरिश रिवर्सल, अ वेरी वेरी ह्यूज डिक्लाइन. सो दिस डिक्लाइन is in fact good for natural gas. Why? Because I think it will complete the unfinished business, and also it will take natural gas towards more better level जहां से जो है एक और लॉन्ग किया जा सकता है. So I'm not very bearish on natural gas as of now, because I think 450 is a good level. But if I see natural gas between 440 to 425, it's a great buying opportunity. Okay, now one thing we need to keep in mind, that the natural gas market has seen some huge selling and some huge bearish candles in last 20 days. Now this is going to happen quite frequently in natural gas market, so be ready with it. If you can't handle, then don't trade the natural gas market, it's very risky. So आप जो है इसमें ऑप्शंस के थ्रू या मे बी ट्रेड कैसे करना है आपको देखना होगा. बट आई थिंक एज ऑफ नाउ 440 to 425, आई थिंक दिस इज अ गुड बाइंग जोन. हम इसे कल देखेंगे, लेट्स सी.
अभी तो बाइंग नहीं करना है, बट टुमारो इफ वी डू गेट यू नो natural gas near say 432, that will be very very ideal level to get a long trade. So basically this is the buying zone. You can buy in this zone, and we can keep roughly I would say 415 as a stop loss. And once again we can target back to this 520 as a level. Okay, so एनजी में दोस्तों अगर 432 मिलता है तो सबसे बेहतरीन लेवल है 432 से 425, ये जो 5 से 7 पॉइंट है यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस 415 का काफी रीजनेबल होगा टारगेट के मुकाबले, और टारगेट सीधे 520 होगा। ठीक है, सो बेसिकली आई एम लुकिंग एट expanding structure like this. Okay, so this is a threatening candle, यानी ये जो है एक climactic activity यहाँ पे denote कर रहा है, and if it doesn't produces any follow through, what will happen is it will bounce back also equally sharper. So that is the logic. So we are playing and on that logic with a very good risk reward ratio. So that's the theme, that's the whole idea about natural gas market. कल हम इसे देखेंगे कि हमें यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह मिलता है, ये व्यू है अभी। लेट्स सी इफ वी कैन गेट अ ट्रेड टुमारो, देन ग्रेट। लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर। सो गोल्ड आपको मैंने दोस्तों 4 दिन पहले कहा था 51,000 दिखे तो आप जो है इसे शॉर्ट कर सकते हो। सो गोल्ड में अगेन बम्पर प्रॉफिट्स, 500 पॉइंट की डिक्लाइन गोल्ड में वापस हो चुकी है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो है 59,000 को थ्रेटन कर रहा है, आज इस समय 1000 पॉइंट नीचे है। सो सिल्वर इज ऑल्सो बेरिश, सिल्वर इज ऑल्सो सेल ऑन राइज। ओके, बट डोंट शॉर्ट एट दीज लेवल्स, यहाँ पे जो है शॉर्टिंग बहुत ही डेंजरस है। ओके, सो फॉरगेट अबाउट शॉर्टिंग राइट नाउ। हाँ, अगर कोई अच्छी कम बैक रैली मिलती है तो फिर हम शॉर्ट करेंगे, एज ऑफ नाउ नथिंग। सो क्रूड में जो हमने कहा था वो वर्क हो चुका है। एनजी में हमने एक बुलिशनेस की बात करी थी, वो टारगेट हो चुका है। गोल्ड में डिक्लाइंस आ चुकी हैं, सिल्वर जो है बेरिश है। कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है 705 आई थिंक कॉपर ने हिट किया था और वहां से वापस नीचे डिक्लाइन है। कॉपर एक काफी बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में जा चुका है। कॉपर पे ऑलरेडी मैंने जो है 500 रुपए का टारगेट दे दिया है। एंड कॉपर इफ वी गेट एनी गुड प्लेस टू शॉर्ट पोजिशनली, हम इसमें बड़ा शॉर्ट ट्रेड करेंगे। फॉर नाउ आई थिंक कॉपर जो है 710 से लेके 690 के रेंज में कॉपर मैं देख रहा हूँ। सो कॉपर इज राइट नाउ 690 टू 710, दिस इज द रेंज दैट आई एम सीइंग फॉर कॉपर फॉर सम टाइम। आई थिंक इट विल मेक अ बेयर फ्लैग ओवर हियर। अगर आपको 690 पे लॉन्ग करना है तो आपका स्टॉप लॉस 680 होना चाहिए। ओके, so you can play in this range but avoid keeping overnight trades. Okay, overnight को थोड़ा सा avoid कीजिए। 680 is a massive support for copper, so you can design your trade keeping this view. I don't think 680 is getting broken anytime soon. I think it will chop around in this range for a few more days, and then we will see whichever side it breaks. So you can go for a long trade also, but 680 ये आपका लेवल है, ये आपका स्टॉप लॉस है। तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को जो है प्लीज ध्यान से असेस करके ही फिर इसमें काम करना। ओवरऑल इट इज बेरिश, मीडियम टर्म में बुरी तरीके से बेरिश है ये, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 500 लेवल्स टू कम। So pretty much that's all from the commodities segment। रही बात क्रिप्टो करेंसी की तो आपको पता ही है, इथेरियम पे मैंने आपको जो है बेरिशनेस वापस से बताया था। 6% आज डाउन है इथेरियम। 1270 से लेके 1300 का जो है एक बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस था, बहुत ही सॉलिड शॉर्टिंग लेवल था। अगेन इट इज डिक्लाइन, सो वी आर बेरिश ऑन दीज कॉइन्स। बिटकॉइन जो है इस समय वापस से 19,000 के स्तर पे आ चुका है, 5% डाउन है, दैट वाज आल्सो बेरिश। ओके, so I think they are going for the final bottoming structure. Okay, so either they will meet a big capitulation or they will just flush through the previous bottoms, and they are heading towards I think some sort of bottom in the month of July. So आने वाले कुछ दिनों में जो है हमें क्रिप्टोज में कुछ एक सिग्निफिकेंट बॉटम जरूर देखने मिलेगा। सो दे हैव स्टार्टेड दैट प्रोसेस। ये जो गिरावट है ये उसी बॉटमिंग के एंटीसिपेशन में ये हो रही है। ठीक है, so that's all. So I have covered as of now global markets, जिसमें अपने यूएस मार्केट और नैस्डैक को कवर किया। यूरोपियन मार्केट्स में इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि दे आर ऑलरेडी वेरी बेरिश, और उनका जो रशिया यूक्रेन के टाइम पे जो बॉटम बना था आई थिंक वही बॉटम जो है अभी
होल्ड करेगा, ठीक है, इसलिए मैंने उनके चार्ट्स को नहीं रेफर किए। बाकी फिर हमने करेंसीज के चारों चार्ट्स देखे, डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई। फिर हमने जो है कमोडिटीज को कवर किया, क्रूड, एनजी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और हमने जो है बिटकॉइन और इथेरियम को कवर किया। दोस्तों अब आते हैं सीधे निफ्टी और बैंक निफ्टी के तरफ, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कुछ लोग अभी जुड़े हैं, सो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, good evening. And let me just remind you that now we are heading very close to the next training scheduled on July 10th. So we hardly have 8 days left. So if you are interested to learn all these things from us, you can join, you can register. And once you register, you will be added in the Telegram group support for 4 months. Now, व्हाट्स विद द निफ्टी। सो सब लोग जो है काफ़ी खफा हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, एंड आई एम वंडरिंग कि ऐसा क्यों आप लोग कह रहे हो भाई। इससे सिंपल मार्केट आपको जो है आज के ज़माने में नहीं मिल सकता। नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ सिंपल मार्केट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग सिर्फ ऑप्शन सेलिंग जानते हैं उनका कोई भविष्य नहीं है इस मार्केट में। गोइंग फॉरवर्ड दिस मार्केट विल मेक यू क्राई लाइक अ बेबी। So welcome to the new market regime of price action trading. Now just look at the daily chart. Let me delete everything. ठीक है, ये आपका डेली चार्ट बॉस। अब बात करते हैं, कल तो मैं आया नहीं लाइव सेशन में, बट अगर मैं नहीं आया तो भी यू कुड हैव, ओके, एक बच्चा भी बता देगा कि ये आज का जो बायस है, यानी आज जो दिन था जो गुजर गया, जो चला गया, उसके लिए आज का बायस जो है एकदम सिंपल है भैया, कि जब तक 15,700 नहीं टूटता है, इट्स अ बाय ऑन डिप, इट्स अ फ्लैग पैटर्न, पोटेंशियल फ्लैग पैटर्न। लास्ट टाइम आल्सो वी हैड दिस फ्लैग पैटर्न, 3 days of correction, then a gap up, and we tried to go higher. So the path of least resistance is on the higher side. Whether it will happen or not, that nobody knows, किसी ने भविष्य देखा नहीं है, बट प्रेजेंट वो सबने देखा है। प्रेजेंट देख के आपको क्या समझ में आता है कि जब तक कल वाले कैंडल का बॉटम नहीं ब्रेक होता, यू नीड टू बाय ऑन डिप एंड कीप टारगेट एज हाई एज पॉसिबल। ओके, दिस वाज आल्सो द ट्रेंड लाइन सपोर्ट। गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं, शो मी थम्स अप। नाउ आज का दिन फिर क्या हुआ, लेट अस सी व्हाट हैपेंड टुडे। मार्केट जो है थोड़ा सा गैप अप खुलता है, यानी पॉजिटिव बायस है, इट गोज अप, कम्स डाउन। तो क्या मार्केट ने आज आपको कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी थी? यहाँ पे दी थी 12 बजे के आसपास, 15,737, हार्डली 50, 60, 70 पॉइंट्स का एसएल था। यहाँ पे अगर आपकी तैयारी होती तो आपको जो है यहाँ कहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, अगर आपने बाई किया होता तो मे बी सम गेन्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा गेन्स है, बट यस, योर व्यू वॉज बुलिश एंड मार्केट गिव यू अ डिप, योर जॉब वॉज जस्ट टू बाय एंड होप फॉर द बेस्ट। सो मार्केट जो है अच्छा एक्टिविटी किया आज के दिन पे। नाउ जिन बंदों ने भी मेरी ट्रेनिंग अटेंड की है, what is your view for the market for tomorrow? Plan एकदम simple है, right? What is the plan? The plan is very simple, that we have possibly broken out of this flag pattern and we are back testing it. So the plan remains as simple as this, that till we are not breaking below this 2 day bottom, you can say 3 day bottom, okay, this is a very nice flip zone. This was your supports broken when acted upon as a resistance, broken when acted upon will work as a support, right? तो इतना सिंपल मार्केट है ये। 15,700 जब तक नहीं टूटता है, कोई भी गिरावट आती है उसे बाय करो, 700 के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगला टारगेट जो है आज का हाई जैसे ही ब्रेक होगा, ये मार्केट आपको सीधे 16,200 दिखा देगा, बात खत्म, ठीक है। दैट्स इट, नो इफ नो बट, दिस इज द चैनल स्ट्रक्चर। नाउ वी हैव ब्रोकन आउट ऑफ दिस ऑल्सो। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा ग्रेट कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट वी हैव ब्रोकन आउट ऑफ सम डिक्लाइनिंग फोर्स which started from 16,800 level. So we are in a very good position. बट सेंटिमेंट्स क्या है, लोगों को भरोसा नहीं इस मार्केट पे, राइट? एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। जब भरोसा नहीं होगा इस मार्केट पे, तभी मार्केट जो है अच्छा मूव करेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट टुमारोज मॉब लेवल। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, वीकली स्ट्रक्चर इज वेरी नाइस। टुमारो इज द वीकली क्लोजिंग।
मैंने आपको लास्ट जो संडे को जो हम वीकली एनालिसिस करते हैं उसमें आपको क्लियर कट बता दिया था मैंने कि ये हफ्ता जो है बुलिश बायस का है। वीकली मॉब लेवल भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था और सिंपल सी बात थी कि कोई भी डिप आती है हमें बाय करते रहना है इस मार्केट में जब तक कि हमारा पुराना स्विंग बॉटम नहीं ब्रेक होता है। इट्स वेरी सिंपल, राइट? Look at the line chart. What is the line chart suggesting? That we are very close to giving a nice breakout. Now if you look at this line chart, जिस दिन भी हम 15,850 के ऊपर की क्लोजर दे देंगे, दिस मार्केट विल बी फ्री टू मूव टिल 16,500। क्या कहा मैंने? जिस दिन भी हम 16,850 के ऊपर की क्लोजर दे देंगे, ठीक है, दिस मार्केट विल बी राइप फॉर स्ट्रेट अवे 16,485 विद अ पॉज ऑफ से 16,200। ठीक है, बात खत्म। और 850 से ये अगर चल पड़ा तो एक और चीज आज ही बता दे रहा हूं कि आपका स्टॉप लॉस अधिक से अधिक 15,700 होगा। दैट्स इट। 150 पॉइंट की स्टॉप लॉस एंड पोटेंशियल यू कैन सी 500 to 600 पॉइंट्स। So we need a closure above 16,850 so that on the line chart we can enter back below this bear market bottom। ठीक है, हम इसके अंदर जा सके। These two structures are holding the market। We already have made one attempt over here। What we need is to go inside like this, okay, and that would probably, or I think it will certainly create a breakout from this line chart based trend channel also, okay. So this is a very nice structure. Once we go inside this, having broken the declining trend line structure, after having made a higher lows, okay, with a nice positive divergence, it's a very nice structure actually। it actually deserves to be, at 16,400 500 level। अब बाकी तो हम मार्केट ही बताएगा, बट हाँ, this structure deserves to be trading at least 16,500 levels, okay। So 80% प्रोबेबिलिटी है कि यही होगा। नाउ सीधे हम अब आते हैं कल के बाजार पे। स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लेवल्स की बात करते हैं तो इट्स वेरी सिंपल कि कल के दिन हमारा जो व्यू होगा दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से होगा कि जो मॉब लेवल है दैट विल बी 15,700, ओके। सो ये जो 680 है और ये 700, ये 20 पॉइंट है ना, इसे हमें मॉब लेवल में ही हम कंसिडर करेंगे। सो द मेक और ब्रेक लेवल, द ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल विल बी 15,700 लेवल, ओके। कंसिडर दिस 680 ऑल्सो, ठीक है। सो ये 20 पॉइंट मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट इट इज 680, ये 20 पॉइंट का जोन है। अबाउट दिस वी आर डेफिनेटली बुलिश। पहला हम टारगेट रखेंगे दोस्तों 15,860 का, and then we will keep second target of 16,000, okay। Now why I'm keeping directly 16,000? Because see, once you clear this 15,860, you would have negated the 4 days of bearishness, okay, and that will catapult the market directly towards the next strike price, the highest strike price, which is obviously at 1600। ठीक है, बीच में 15,925 का ये जो एक पड़ाव है, आई थिंक मार्केट इसे बड़े आसानी से ब्रेक कर देगा एंड इट विल अगेन टेक सपोर्ट एंड बाउंस ऑल द वे टिल 16,000। सो दैट इज द लॉजिक, दैट इज व्हाई ये हमारा जो है 860 का पहला टारगेट है, क्योंकि ये चैनल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो जाएगा। बाय दैट टाइम इट विल रीच 860, विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, एंड अबाउट दैट 15,925, इसको भी आप लिख सकते हैं जस्ट इन केस इफ यू वांट सम रेफरेंस। बट मेरा टारगेट 16,000 है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑपोजिट। व्हाट इफ द मार्केट becomes bearish, okay। So you can keep this channel for your reference, okay, and if the market breaks down, this will become AB is equal to CD pattern and we will hit 15,660 से लेके 620। तो डाउनसाइड में 15,620 ये जो है यहाँ पे एक पहला टारगेट होगा। नाउ अगर मार्केट 620 को ब्रेक करता है तो किसी भी तरीके का लॉन्ग ट्रेड को कैरी नहीं करना है, ओके। बिकॉज इफ यू रिमेंबर इन दिस वीक आई हैड गिवन दिस सेम एग्जैक्ट लेवल कि 620 को स्टॉप लॉस रख के जब जब कोई गिरावट आती है उसे बाय करो, बिंदास मार्केट भागेगा। हमने ये चीज परसों भी किया था ग्रुप में, एंड
yesterday also we did, so twice we got that opportunity. इसके पहले हम already long करके गए थे, तो ये भी हमें गैप अप का फायदा मिला था. सो वी बेनिफिटेड एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑन ऑल द डेज. आज तो मैं था नहीं, सो आज का नहीं पता, बट ऑल द डेज जो है हमें बेनिफिट मिला है. सो 620 को याद रखिए, 620 के नीचे मार्केट इज डेवास्टेटिंग. सो हमें कोई भी लॉन्ग्स को नहीं रखना है. मैं कोई डाउन साइड टारगेट नहीं अभी देना चाहता यहाँ पे, बट येस इट कैन सर्टेनली गो टिल 15,485. ठीक है. So that's the view. Now tomorrow if there is a flat opening, I think that is good for markets. If there is a gap up opening, that is good for markets. If there is a gap down opening below the mob level, that is a warning. ठीक है. ये एक स्पेशल केस के बारे में बस मैं बात करूंगा कि अगर कल मॉब लेवल के नीचे यानी 15,700 680 के नीचे अगर मार्केट खुलता है, यानी इसके नीचे यहां खुलता है मार्केट, देन एक ही सिचुएशन में हमें लॉन्ग करना है. वो ये कि अगर मार्केट ये 620 को ब्रेक करता है एंड इफ इट इज कमिंग बैक अगेन और वी वैप को कट कर दे, तो फिर बाय हम कर सकते हैं. ठीक है. ये पर्टिकुलर जो स्टाइल मैंने बताया, ये अगर दिखेगा तो ही फिर हम बाय करेंगे. सी दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न through the trainings. Okay, how the price action must be traded, what are the things that we should look upon, situation कैसे फ्रेम करना है और उसको प्रैक्टिकली ट्रेड कैसे करना है. The do's and the don'ts, they are very very important. So that's it. That's all with the nifty analysis. अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में. सो आई थिंक बैंक निफ्टी today's price action is much better than nifty. Why? Because if you see जो वीकली मॉब लेवल मैंने बैंक निफ्टी के लिए दिया था 33,135, दैट इज हियर. ओके, सो कल का जो बॉटम है, आज का जो बॉटम है, ये दोनों सेम है, 33,150 देयर अबाउट्स. ओके, so I think bank nifty as of now is looking very nice to me, provided that it doesn't break 33,000. सो अगर बैंक निफ्टी 33,000 नहीं ब्रेक करता है तो तब तक तो ये ठीक है, तब तक सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव ही मानी जाएंगी. बट अगर 33 ब्रेक होता है तो किसी भी तरीके का लॉन्ग ट्रेड फिर हमें नहीं रखना है. ओके, बिकॉज देन इट बिकम्स वेरी रिस्की. सो वी वुड नॉट लाइक टू टेक एनी चांसेस. ओके, सो वी आर वेरी क्लोज टू this downtrending line. We have generated a first rally, we took out this high. Okay, and we are left with just resuming this. तो अगर हम इसको रिज्यूम करते हैं दोस्तों, तो फिर बहुत अच्छी रैलीज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में. कम से कम इफ आई बिलीव 35,500 तो मिनिमम से मिनिमम हमें मिलेगा. ठीक है. नाउ मॉब लेवल और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बैंक निफ्टी के बारे में. सबसे पहले ये जो ब्लैक कैंडल है, इसका जो बॉटम है 33,800. ओके, सो कीप दिस लेवल इन माइंड, 33,800. ठीक है, बैंक निफ्टी स्पॉट पे. बैंक निफ्टी मस्ट close this, bank nifty must break above this. Okay, so we want to get out of these two big resistances. Okay, we want to see our candles knocking higher above these two bearish candles. Yeah, so I would like to see bank nifty knocking away these two bearish candles, because that would set this buy on dip trend in motion, and that would be a precursor to a breakout coming from these several resistances. And equal move, if I count, it will come nothing less than 35,500, which happens to be a good flip zone. It was support here, support here. That was the breakdown point here, which started this entire decline. So this looks to be a reasonable टारगेट फॉर मी. ओके, सो ये हमारा जो है कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है पोजिशनली एज ऑफ नाउ. रिमेंबर 33,000 एज अ सपोर्ट. सो बिलो 33 नो लॉन्ग्स. up till or above 33 we can trade in this 800 point range. Once through this, no looking back, 35,500. तो ये एक पोजिशनल एक व्यू मैं बता रहा हूँ आपको. ठीक है, अब बात करते हैं कल के लिए क्या हमारा मॉब लेवल होगा. सो आई थिंक इट विल बी 33,100, which is close to this 33. so pretty much यही लेवल्स हैं. 33,000 आपका मॉब लेवल है. पहला टारगेट है 33,800 का.
अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर और हायर हम जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स द एनालिसिस फॉर इंट्राडे एंड दैट्स द एनालिसिस गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो. So that's all I have to talk about Bank Nifty. So I have completed my job. Nifty Bank Nifty हम complete कर चुके हैं. थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग जो पर्सपेक्टिव मुझे दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी पे, वो ये है कि इट्स लुकिंग एज इफ it's making a some sort of a declining wedge, but it is incomplete as in it must immediately break out, okay, or else it is going to make a new low, okay, or else it is going to make a new low. So that is why I said bank nifty is position very interesting, क्योंकि या तो ये बहुत बुलिश करने वाला है या तो ये नया लो बनाने वाला है. Okay, so next two sessions are very very important for the market, and they happen to be Friday, which is the weekly closing, and Monday, which is the weekly opening. So let's see what's in store. As of now चीजें अच्छी हैं, ठीक है, but हमें बुलिशनेस चाहिए, 33,800 चाहिए हमें, नहीं तो फिर ये जो एक अच्छा स्ट्रक्चर जो बना था ये फिर खराब हो जाएगा. सो वी हैड दिस वेरी नाइस बुलिश इनसाइड बार, वीकली बुलिश इनसाइड बार, जस्ट लाइक हियर, and last time we managed to come and retest these areas, and then we staged a very nice rally. We have again come lower, okay, but the rally is missing. So maybe tomorrow we might get rally and close the weekly candle on a positive note, so as to ensure that this bullish inside bar breakout is justified, it holds some value in future, and we can probably target the higher levels of say 35,500. Okay, so very interesting day tomorrow. So wish you all the best for Nifty and Bank Nifty trading. So that's all from my side. Let me know अगर आपकी कोई stock queries है, तो we can take some stock queries and then we can wind up the session. वेरी गुड क्वेरी कार्तिक शुक्ला. इसको इनगल्फिंग कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे? नो, इट्स अ आउटसाइड बार, इट इज नॉट अ एनगल्फिंग. एनगल्फिंग में जो है पूरा बॉडी टू बॉडी एनगल्फ होना चाहिए. दैट्स अ वेरी सटल डिफरेंस. ओके, सो कुछ स्टॉक्स की तरफ चलते हैं. सबसे पहले मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लेना चाहूंगा, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैंने आपसे दोस्तों बाय के लिए कहा था, एंड व्हाई आई हैड कॉल्ड फॉर बाय, बिकॉज यू सी तो यही इंटरेस्टिंग चीज है बाजार का. मैंने यहाँ पे जब 2745 पे एग्जिट करने को कहा, तब से लेके यहाँ तक, ठीक है, एवरी डे पीपल आस्क मी कि रिलायंस को कब बाय करना है, कब बाय करना है. फिर यहाँ पे जो मेरा लोकेशन है, मेरा लोकेशन यानी कि जहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है, दिस इज माय मूविंग एवरेज, and I waited for this black candle, then I waited for this white candle, it told me a bullish inside bar. So all my students know that we follow the principle of location plus confirmation. So we had a very good location. I was waiting for this entire location patiently for almost 2 weeks. Confirmation आता है और जैसे ही इसके ऊपर गया, it was a buy trade and this was the stop loss, right? So Reliance has moved very nicely. रिलायंस जो है आप देख सकते हैं 2480 के आसपास से जो है ये बहुत अच्छा चला है, लगभग 100 पॉइंट के ऊपर हो चुका है, एंड इट्स वेरी नाइस. सो आई रियली लाइक द एंटायर स्ट्रक्चर दैट इज अनफोल्डिंग इन रिलायंस, एंड आई एम टारगेटिंग माय फर्स्ट area near this trend line resistance that will come somewhere here, okay, somewhere near 2770, 2750. If we manage to take out that, then we are heading towards 3000. ठीक है, सो रिलायंस इज अ वेरी नाइस स्टॉक राइट नाउ, जो कि हमारे लिस्ट पे था और अच्छा चल रहा है. Okay, very big message. Had good profits in oil stocks this series, all thanks to your guidance. Acha, okay, thank you. But got trapped in SRTRA, Shriram Transport Finance today. Q trap हो गए? Overall June went good. Sir, what's your view on RBI Black Swan event report? ठीक है, जब कोई रिपोर्ट आ गई तो वो ब्लैक स्वान कैसे हुआ, पहले तो ये बात. दूसरी बात कि श्री राम ट्रांसपोर्ट पे मैंने तो कोई ट्रेड नहीं दिया था, आपने लगता है गलती कर दी अपने आप से. सो यही होता है, लोग हमारे उससे कमाते बहुत हैं, खुद की एक सिली मिस्टेक से गवा देते हैं. सो दैट इज अ मैसेज
आपके लिए आपका खुद सेल्फ आपको एक मैसेज दे रहा है, अगर आप पढ़ सको समझ सको तो। बजाज फाइनेंस पे पहला क्वेरी है, सो लेंगे बजाज फाइनेंस को। और दोस्तों 200 लाइक आज चाहिए आज के सेशन में, नहीं तो वीकली एनालिसिस करना जो है बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। सो 200 लाइक्स थोड़ा करिए, थोड़ा मैं भी बाकी यूट्यूबर की तरह थोड़ा प्रमोशन चाहता हूँ, ठीक है। 200 लाइक करो। बजाज फाइनेंस में अगर आपने बाई किया है तो जो रिसेंट बॉटम है उसे मेंटेन करें एज अ स्टॉप लॉस, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ है नहीं इस चार्ट में पढ़ने के लिए। ओवरऑल इट इज़ गुड, इट जस्ट नीड वन पुश अप। अगर एक रैली इसमें आ गई अराउंड 5,800, तब गेम सेट है, सीधे फिर ये 6,500 पे दिखेगा, ठीक है। सो बजाज फाइनेंस में ये व्यू है। बजाज फाइनेंस आने वाले दिनों में बुलिश व्यू ही हमें दिखाई देगा। इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, नंबर वन दैट इट इमीडिएटली बाउंसेस ऑफ, नंबर टू दैट इट मेक्स सम सॉर्ट ऑफ वेज, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से कुछ यहाँ पे एक और लो बना के कुछ वेज वाला स्ट्रक्चर बना सकता है। नाउ ये मुझे रिमाइंड कर रहा है बजाज फाइनेंस जब 2020 मार्च में इसका यही हाल था। इफ यू सी हियर, आई रिमेंबर दिस क्योंकि इसका बॉटम जो है मैंने कैप्चर किया था। सो इट वाज ट्रेडिंग इन दिस वेज, ओके। सो सबसे पहले इसको यहाँ पे मैंने बाई किया था और यहाँ पे, ठीक है, ये वेज, और ये जो है ना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया था आफ्टर गोइंग हायर, बट इट स्टेड इन दैट वेज। इसने एक नया वेज बनाया, ठीक है। तो हमने वापस यहाँ बाई किया, ओके, बिकॉज जनरली एक वैल्यू वाला जो स्टॉक है ना, ये मे बी एक दो बार फेक एंट्री दे देते हैं, बट स्ट्रक्चर इंटैक्ट था। इट मीन्स कि somebody is definitely lapping up और वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे थे। लुक एट दिस, massive volumes, higher volumes on smaller candles in a falling wedge. It's a classical Wyckoff accumulation, ठीक है। सो जब ये कैंडल पे जब एंट्री मिली थी एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, और 2000 के नीचे बजाज फाइनेंस था और वहां से तो कहाँ चला गया, ठीक है। सो सिमिलर एक्टिविटी आई थिंक इज गोइंग ऑन हियर, ओके। सिमिलर एक्टिविटी जो है ये यहाँ चल रहा है। सो कैश मार्केट में प्ले करना, इस टाइप की चीज़ें हमेशा कैश मार्केट में ही करनी चाहिए, एफएनओ में नहीं, ओके। बिकॉज यू माइट थिंक कि वो बाइंग हो रहा है, सर ने बोला बाइंग हो रहा है तो आप, बट एफएनओ में नहीं, कैश में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेरी जो है, निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो चुकी है। श्रीनिवास इज आस्किंग बैंक निफ्टी एनालिसिस आई हैव प्रेजेंटेड, यू कैन जस्ट रिफर टू दैट। Next message is thank you sir about Reliance, Rishabh Arya, okay, welcome. Reliance double top, no, Reliance will not make a double top. It will either the top is in or we are going for a fresh new top. Bajaj Finance हो चुका है। नेक्स्ट क्वेरी जो है वो है बजाज फिनसर्व पे, ओके। सो अनदर बजाज स्टॉक, बजाज फिनसर्व, बजाज ट्विंस। सो बजाज फिनसर्व इज अ स्टॉक जिसका कोई अंत नहीं है गिरने का, ठीक है। इनमें कोई बॉटम नहीं है, कुछ नहीं है। सो इट्स अ गोइंग डाउन द ड्रेन, इट्स बेरिश, देयर इज नो रिवर्सल एज ऑफ नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेरी है इन्फोसिस पे। लेट मी जस्ट डायरेक्टली टेक द क्वेरीज इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग द क्वेरीज, इट सेव्स टाइम। सो इन्फोसिस में ये जो रिसेंट जो एक्टिविटी हुआ था, इसके बाद जो है मैंने इसमें एक सजेशन दिया था कि कैश में किसी को बाय करना है तो कर सकता है ना। व्हाई आई हैड गिवन दैट सजेशन फॉर टू रीजन। नंबर वन, इफ यू रिमेंबर, जब इन्फोसिस ने ये डबल बॉटम बनाया था इस दिन, यानी ये जो ब्लू कैंडल है, लेट मी मेक इट अ कैंडल स्टिक फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग। इस कैंडल के टाइम पे ना, इस दिन भी किसी ने पूछा था तो मैंने मना किया था कि बाय मत करना अभी। व्हाई? बिकॉज इनवेरिएबली ऑल दीज डबल बॉटम्स दे आर बीइंग ब्रोकन। बट अगर ये ब्रेक कर दे, अगर ये ब्रेक कर दे और वापस आ जाए तो फिर बाय कर लेना, दैट विल बी अ साइन ऑफ अ गुड बॉटम। ये जो लेवल है ये काफ़ी अच्छा लेवल है और हमें एक एक मीन रिवर्जन ट्रेड मिलेगा। मीन रिवर्जन यानी कि जो लॉस्ट ग्राउंड है उसे एक बार टेस्ट करेगा। सो इस स्टॉक ने 200 डीएमए को बहुत बुरी तरीके से ब्रेक किया है। नाउ हियर योर target should be to retest that 200 which is right now at 1600 rupees, ठीक है। सो इन्फोसिस में अगर आपने बाई किया हुआ है, नीचे के स्तर पे बाई किया हुआ है, इफ यू हैव कुशन, तो इसे आप एज अ स्टॉप लॉस यूज करके यू कैन ट्रेड, यू कैन राइड।
Once the stock moves out of this trend line, once it is at 1522, I think that will set the stage for a move towards 1600 rupees. Okay, these are all bear market stocks, all the IT pack. Okay, and they are entering first stage of making some kind of bottom. So generally that's a very tedious process, it's a very frustrating process. Some days you will feel it is going nice, and then again it will go and make no lower levels. So it's a very very boring process. As of now, I think this bottom will hold, and we are going towards 1522 followed by 1600. विप्रो मैंने जो है 430 425 ये स्लैब में बाइंग करा के अभी रखा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 390. As of now, I'm not very happy with the way stock is moving because it is just at cost, and this level is very very solid level. Okay, so uh, even at this level I do not see any committed buying coming from the investors. Okay, so I have my stop loss at 390, that's it. Okay, if it has to work, it will work immediately and bounce till 480, or else it will take the stop loss. So it's a small stop loss trade taken at a very very huge level. Now generally these type of levels are not broken so easily, but since the stock is behaving in this a way, behaving in this manner, it is not crossing this black line which I have just now drawn from the COVID bottom of March 2020, राइट. 430 के ऊपर ये स्टॉक गया तो 480 मार देगा. वहां पे हम देखेंगे कि हमें क्या करना है. ठीक है, प्रॉब्ली नियर 500. इफ इट गोज वी विल बुक द प्रॉफिट्स. इफ इट हिट्स द स्टॉप लॉस वी विल टेक द स्टॉप लॉस. सिंपल. वेदांता शॉर्टिंग लेवल, अरे भैया वेदांता यहाँ नहीं शॉर्ट करना है. ठीक है, दिस इज अगेन अ न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम विद पीपल. शॉर्टिंग हमेशा तब करना चाहते हैं जब स्टॉक जो है पूरी तरीके से एकदम क्रैश हो चुका है. दैट इज नॉट द प्लेस टू शॉर्ट. यू विल बी बेयर ट्रैप्ड. जस्ट लाइक दीज आर नॉट द प्लेसेस टू गो लॉन्ग. यू विल बी बुल ट्रैप्ड. फंडे तो क्लियर रखो मार्केट के, कम से कम बेसिक्स तो क्लियर रखो. ठीक है, सो वेदांता एज ऑफ नाउ नो ट्रेड. 242 के ऊपर जाएगा तो कोई ट्रेड इसमें मैं सजेस्ट करूंगा. एज ऑफ नाउ नथिंग. आईटीसी एंड एचयूएल बोथ एफएमसीजी काउंटर्स हैं. आईटीसी की अगर हम बात करें तो स्टॉक ठीक है एज ऑफ नाउ. ओके, मे बी इट कैन गो टिल 300, बट नथिंग कंक्लूसिव आई कैन से एज ऑफ नाउ. ठीक है, पुट योर स्टॉप लॉसेस, होप फॉर द बेस्ट. नेक्स्ट क्वेरी वाज HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर. HUL इज अ लॉन्ग टर्म टाइप ऑफ अ स्टॉक. इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. अभी जब ये लास्ट टाइम नीचे आया था तो 1900 और 1800 इसका हमेशा से बाइंग जोन ही रहा है. और मैंने 1-2 साल पहले भी सजेस्ट किया था, कोविड के टाइम पे भी, यहाँ पे 1900 के आसपास. सो यहाँ भी मैंने वही सजेस्ट किया था कि इसको आप बाय कर सकते हो, राइट. और 2500 के आसपास का टारगेट होना चाहिए. स्टॉक 2400 तक जा चुका है. सो इट्स अ इन्वेस्टर टाइप ऑफ अ स्टॉक. इसको डे टू डे ट्रेडिंग में कभी यूज मत करना. ठीक है, सो अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो नहीं, अभी तो कोई लेवल नहीं है. आपको पूरा एक साइकिल वेट करना होगा. अगर आपको रिस्की बाय करना है तो 2170 पे बाय कर सकते हो. स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का होगा, 2070. टारगेट होगा 2440. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेरी है क्वेस्ट कॉर्प. क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड. See, Quest Corp Limited. Okay, so this stock is in a confirmed downtrend, and any rally that comes will be limited to 700 rupees. Stock बहुत बुरी तरीके से हमने 233 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है ऑन द लोअर साइड. ठीक है, बहुत ही बेकार हालत है स्टॉक की. 700 के नीचे जब तक है स्टॉक कोई होप नहीं है. ओके, सो डोंट एवरेज, डोंट गेट ट्रैप्ड. If you get your cost, suppose if it is at 700, then just exit. देखो, आप लोग अगर स्टॉक्स में एग्जिट नहीं करोगे तो बहुत बुरी तरीके से फंसोगे. ये बात मैं अक्टूबर से चिल्ला रहा हूँ, और 8 महीने हो चुके हैं इस बेयर मार्केट को.
वेदांता पे अभी मैंने अपनी एनालिसिस प्रेजेंट कर दी है। आप लोग देखो, ऊपर बाय करके दुकान डाल के बैठे थे ना आप लोग, तो ऊपर लाइव सेशन नहीं देखा था, इसलिए ये हालत है। लाइव सेशन देखोगे तो फ्यूचर में बचे रहोगे। वेदांता जो है ना, टॉप पे ही एग्जिट करवा दिया मैंने, जितने भी लोग हैं। मैकडोवेल, इस स्टॉक्स को समझो, स्टॉक्स की टेक्निकल्स थोड़ी सी अलग होती है। स्टॉक्स में यू नीड टू थिंक मोर इन टर्म्स ऑफ स्टेजेस। मार्केट में आपको स्टेज नहीं सोचना है। मैकडोवेल, स्टेज का मतलब होता है कि वो स्टॉक अभी अपने ओवरऑल स्टोरी में कौन से फेज में है। ठीक है, एक्यूमुलेशन में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, कितने राउंड इसके ऊपर के लग चुके हैं या नीचे के लग चुके हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऑल दिस थिंग्स with stock are we taking right now? McDowell United Spirits. Okay. So this stock is pathetic as of now. कोई देखो होप नहीं है। होप एक ही है कि डेड कैट बाउंस आएगा 803 805 रुपए तक, अधिक से अधिक, दैट्स इट। ठीक है, ये स्टॉक आपको याद है, मैंने काफी बार इसमें कहा था कि ये स्टॉक अच्छा है, बट इसका टाइम नहीं आया है, और इसका टाइम अगस्त के बाद आएगा। ठीक है, सो अभी भूल जाओ। any these are good support levels if you can just copy this chart। आप अपने स्क्रीन पे इस चार्ट को कॉपी कर सकते हो, ड्रॉ द सेम लाइंस। सो इट्स अ गुड सपोर्ट, हाँ इट्स अ गुड सपोर्ट। फॉलोइंग वेज बन रहा है, सो ट्राई कर सकते हो यहाँ पे 700 के आसपास, बट कीप विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। 805 840, these are massive resistances, so basically it will trade in this channel। ये लाइन सपोर्ट है और ये वाली लाइन रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो प्रॉब्ली 700 टू 840, दैट्स इट। इस जोन में एज ऑफ नाउ ट्रेड करेगा। यहाँ से आप अपना डिक्लाइनिंग चैनल लाइन इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस, इसको अच्छे से आप ड्रॉ करोगे सो इट विल लुक लाइक अ चैनल। सो दिस वाज फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग एंड बॉटमिंग अगस्त, समवेयर अगस्त। 15 अगस्त को आज़ादी मिलेगा तो दारू पियेंगे सब लोग। मैकडोवेल 15 अगस्त का डेट मेरी तरफ से। लेट्स सी, पॉलीप्लेक्स, अगली क्वेरी है। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, दोस्तों 200 लाइक चाहिए आज के वीडियो में। कैसे करोगे आपको देखना है। पॉलीप्लेक्स, सी पॉलीप्लेक्स एक अच्छा स्ट्रक्चर है, अच्छा चार्ट है। आई लाइक दिस, व्हाई? For two reasons. Number one, that it is one of the few stock that came at 233 moving average, respected it and has bounced back also pretty nice। और as of now इसने अपने 233 मूविंग एवरेज को नहीं ब्रेक किया है। ठीक है, यानी ये अभी तक ठीक है। अब फ्यूचर में ये ब्रेक करेगा, सो तब का हम तब देखेंगे। अभी हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन बाय दिस स्टॉक समवेयर नियर दिस 2100। ठीक है, समवेयर नियर 2070 2100, यहाँ पे बाय कर सकते हैं विद रीसेंट बॉटम विच इज एट 1900 एज अ स्टॉप लॉस। ठीक है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, एंड लेट्स सी व्हाट द स्टॉक डज। आइडियली अगर बाजार ठीक ठाक रहा तो स्टॉक एक और न्यू हाई बना देगा, जहां पे हम इसे बेच बाच के निकल जाएंगे, या एक बार फॉलो अप ले लेंगे इन कमिंग वीक्स। ठीक है, फिलहाल का प्लान इज दिस, दैट्स इट, वेरी सिंपल। आईआरसीटीसी वगैरह पे कोई व्यू नहीं है मेरा, ऑल दोज आर बेरिश काउंटर्स। इंडिया मार्ट, यार ये सब कैसी क्वेरी पूछ रहे हो, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। इंडिया मार्ट, आईआरसीटीसी, देखो क्या करके रख दिया रिटेलर्स की हालत, देखो ऐसी क्वेरीज पूछी जा रही हैं। इन सबों में बिल्कुल पैसा मत डालो। मैं पिछले 10 महीने से चिल्ला रहा हूँ बॉस। 2008 के बुल मार्केट के बाद क्या हुआ स्टॉक्स का, एक बार थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा चार्ट्स को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है बुल मार्केट और बेयर मार्केट के ट्रांजिशन में। इन अ बुल मार्केट यू सेल गार्बेज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, एंड व्हेन द टाइड्स टर्न, उसकी शाइन निकल जाती है और आपको पता चलता है कि वो तो एक गार्बेज था। ठीक है, सो स्टॉक्स में यही चीज होता है। 100 रुपए के स्टॉक को 10,000 में बेचेंगे और पब्लिक 9,000 से बाय करना शुरू करेगी। ठीक है, और बाद में 95 रुपीज पे कट कर देगी, जहां पे उसका बॉटम बनेगा। रैलिस इंडिया, couple of more queries and then we will wind up, we are heading towards 1 hour live 1 hour time limit। रैलिस इंडिया, अगेन सेम इंडिया मार्ट वाली स्टोरी है। डेड स्टॉक्स हैं ये सब, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। एसीसी, नेक्स्ट क्वेरी इज एसीसी सीमेंट।
ओके, होपफुली नॉट दैट बैड। सो एसीसी में देखो क्या कहानी है कि 2400 का मेजर रेजिस्टेंस है और 1900 का मेजर जो है एक सपोर्ट है स्टॉक में। ओके, नाउ ये स्टॉक एक ऐसे सिचुएशन में पोजीशनड है जहां पे ये ना तो रेजिस्टेंस पे है ना तो ये सपोर्ट पे है, और ऐसे जगहों पे हम काम नहीं सजेस्ट करते। सो दैट इज़ वाई आई वुड नॉट गिव एनी ट्रेड आइडियाज़। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपकी लॉन्ग ट्रेड है तो प्लीज़ 2040 को स्टॉप लॉस रखें, और 2400 आता है तो बुक कर लें। इसके अलावा इस समय इसमें कोई सुझाव देना सही नहीं होगा। पेटीएम के ऊपर क्वेरी है, क्या बात है। देखो रिटेल की क्या हालत कर दी है। रिटेल के पास इंडिया मार्ट, पेटीएम, जोमेटो, यही सब बचे हैं अब। याद है ना, अक्टूबर से वार्निंग दे रहा था मैं। एटलीस्ट कुछ लोग तो होंगे जो तब से देख रहे हैं मुझे। देखो ये हालत कर दी है रिटेल की इन्होंने। सो अगेन समझा रहा हूँ, इन सब स्टॉक्स के चक्कर में मत पड़ो। आज ये 600 के दिख रहे हैं ना, एक टाइम आएगा जब ये 6 रुपए 75 पैसे भी नहीं होंगे। ठीक है, पेटीएम में सीधी सी बात है, यही एक लेवल मैंने दिया था कि जिस दिन 1270 टूटेगा ये स्टॉक में उसका खुद का इन्वेस्टर भाग जाएगा। इट्स बेसिक टेक्निकल्स, बेसिक कॉमन सेंस है। खुलते ही जो स्टॉक सिर्फ नीचे गिरा हो, कहां से वो ऊपर चल जाएगा? है कोई सेंस इस बात का? खुलते ही जो स्टॉक नीचे गया हो आज तक, वो कहां से ऊपर चल जाएगा? ठीक है, so these are all dead cat bounces. They come in large percentage but only to be sold. बाकी अब किस्मत आजमाना है तो आप रखे रहिए। नेक्स्ट क्वेरी है एक्सिस बैंक। कपल ऑफ क्वेरीज और फिर हम वाइंड अप कर देते हैं। एक्सिस बैंक को देखते हैं एक बार। इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है एक्सिस बैंक। से एक्सिस बैंक में सपोर्ट अच्छा ले रहा है 630 620 पे, बट अभी थोड़ा सा वेट करना ही बेटर है। व्हाई आई एम सेइंग कि वेट करना बेटर है, बिकॉज सी, लेट इट फर्स्ट टेक ऑफ। एक बार टेक ऑफ हो जाए ना, तो हमें फिर क्या है कि चिंता खत्म हो जाती है। फिर देन वी बिकम निश्चिंत कि जो बॉटम है दैट इज इन प्लेस, और हम जो है फिर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अपने को एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। ऐसे गिरने वाले में क्या होता है कि हमें पता नहीं कि ये कहाँ तक गिरेगा। करेक्ट, और ये फिर एक साइकोलॉजिकल गेम आपके साथ मार्केट खेलने लगता है। सो दैट इज वाई अच्छी जगह है, सारी चीज़ें ठीक है, थोड़ा सा वेट करना बेटर है। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी को भी एक बार 34,800 चल जाने दो, कट कर लेने दो। ऑल दीज स्टॉक्स ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट टू फ्लाई हाइयर। ठीक है, अगर अभी लॉन्ग में है तो 610 को स्टॉप लॉस रखिए, 610। हिंडाल्को, देखो हिंडाल्को अगेन, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, मेटल्स जो है, कोई भविष्य नहीं है इस समय। कॉपर ऑलरेडी मैं 40% नीचे का टारगेट दे चुका हूँ। सो देखो अभी कुछ नहीं है इन स्टॉक्स में। एंड यू नो, आई फॉलो अ प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच इन टेक्निकल एनालिसिस। सो एज पर माई प्रोसेस, stock is in a firmly in a downtrend. So nothing, it's all bearish. अब शॉर्टिंग के लिए मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता। ओके, अनलेस वी कम टू सम मेजर रेजिस्टेंस, लॉन्ग में यहाँ पे दे नहीं सकता। बाकी अगर आप लॉन्ग हैं तो कुछ स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, एक स्टॉक ले लेते हैं, मैक्स हेल्थ केयर। काफी देर से क्वेरी चालू है मैक्स हेल्थ केयर, एंड देन लेट्स वाइंड अप। सो मैक्स हेल्थ केयर, देखो ये स्टॉक इस समय मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट क्या है, हेल्थ केयर है। सो हेल्थ केयर वालों पे मुझे भरोसा नहीं है। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ इस स्टॉक में मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट कर सकता हूँ, वो ये कि स्टॉक जिस दिन 340 के आसपास आएगा, आप एक बार फॉलो अप लेना। ठीक है, बिकॉज इफ आफ्टर कमिंग से सपोज ये ऐसे ये आता है, इट कम्स हियर एंड देन इट स्टार्ट्स टू टेक ऑफ ना, तो फिर इसमें बहुत ही शानदार लॉन्ग ट्रेड है। ठीक है, बहुत ही हैवी ड्यूटी, बहुत ही एक शानदार लॉन्ग ट्रेड है फॉर अ टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट हिटिंग न्यू हाई, बट ओनली इन दिस वे, ओनली इन दिस मैनर।
ठीक है, एक तो ये ट्रेड है, तो 340 आएगा तो फॉलो अप लेना होगा, देखना होगा। ठीक है, एक ये व्यू है। दूसरा कि एकदम शॉर्ट टर्म पूछ रहे हो, मे बी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, सो दिस स्टॉक व्हाट इट हैज डन टुडे, I actually like these type of candles. When you have a flag, you go for a breakout and it gets sold off, yet maintaining the bottom. Now see, ऐसे स्ट्रक्चर में क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर कल ये गैप अप होगा इस ब्लैक कैंडल के ऊपर, तो ये स्टॉक भाग जाएगा 390। ठीक है, तो अगर आप किसी भी प्रकार का एकदम शॉर्ट टर्म लॉन्ग है, तो आप थोड़ा यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, मे बी 360 और समथिंग, एंड होप फॉर द बेस्ट। if it directly goes near 390, then congratulations, ठीक है, it can in that case shoot little more higher towards 398 also। राउंड नंबर है 400 का, वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। आई लाइक दिस स्टॉक, ओके, आई कैन सी definitive institutional activity, just by the look of it I can make it out। so इसे नोट किया जाए। सुकन्या पीएसपी प्रोजेक्ट, व्हाट इज दिस? एक तो राहुल गांधी से सुकन्या याद आ गया, पर ये क्या है? सुकन्या पीएसबी, आई डोंट नो, सिंबल मुझे बताइए, क्योंकि इसमें मुझे सिंबल नहीं दिख रहा है। पीएसबी, सुकन्या पीएसबी, ये किसी ने क्या लिखा है? अच्छा, आपने किसी और का नाम, अरे यार ऐसे मत करो, कंफ्यूज हो गया मैं। किसी ने लिखा है कि किसी और ऑडियंस का नाम लिख दिया स्टॉक के आगे, सो आई वाज सर्चिंग फॉर सुकन्या पीएसबी प्रोजेक्ट, बट द स्टॉक नेम इज जस्ट पीएसबी प्रोजेक्ट। ओके, sorry, yeah, so uh, see this stock as of now it's moving in a very simple structure of channel, okay, in this particular format you can say, okay, so I like this chart, I like this chart, it's a very good structure। now I don't know आपने कहाँ buy किया, but I can only tell one thing, holding this 460, the stock deserves to make a slight new high, so around this you should book out, okay, you should definitely book out around that। rest long term and all, I don't know as of now about this stock, but जितना चार्ट पे है तो इट सजेस्ट कि हाँ, अगर एक और न्यू हाई अगर जाता है वहां, तो बुकिंग तो आप डेफिनेटली करना, ओके, बिकॉज सी दिस स्टॉक व्हेन एवर इट मेक्स अ न्यू हाई देयर इज अ प्रॉफिट बुकिंग, okay, it's very very evident। so booking to kar lena, and then we can again, you can ask for again review and we will see, we can again then do buy on dips and again keep playing। so suppose if this channel runs for next 5 years, अगर ये चैनल इसी तरीके से चलते रहा भविष्य में, राइट, so you can keep, booking, buying, trading in this way। दैट्स इट। चलिए एक आखिरी क्वेरी लेते हैं, अशोक लेलैंड, एंड देन वी आर श्योरली वाइंडिंग अप। अशोक लेलैंड लेते हैं। So Ashok Leyland, okay. So now few weeks, no, not few, yeah, few weeks back मैंने स्टॉक से एग्जिट करने को कहा था यहाँ पे 144, और उसके बाद स्टॉक 128 जाता है, और आज ये स्टॉक ने इसको क्रॉस किया है। सो दिस इज नाइस, ओके। नाउ स्टिल व्यू इज सेम कि अभी थोड़ा सा इससे बाहर रहो, ओके। आई लाइक व्हाट द स्टॉक इज डूइंग, आई लाइक दिस ओवरऑल इनवर्स हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर, आई लाइक व्हाट द स्टॉक इज डूइंग, बट I don't like the stock as of now, okay, let it go much higher। see अपना फंडा वेरी सिंपल है, जो घोड़ा एकदम भाग जाए ना, फिर जब वो पुल बैक दे तो उसको बाय करो। दिस इज अ फैंटेस्टिक चार्ट, वेरी नाइस। आई कैन सी द मंथलीज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग आउट। सो यहाँ पे आउट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस है, सो एक बार निकल जाओ। ओवरऑल इट इज शेपिंग अप टू बी अ वेरी बम्पर चार्ट, वेरी वेरी नाइस। सो इन फ्यूचर हमें इससे ट्रेड मिलेगा। इट इज अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर, वेरी नाइस चार्ट, दैट्स द व्यू। now if you are asking for tomorrow particularly, then yes, 144 is the support, 144 on the cash, 144 holding, 144 you can buy, and you should see I think 155 tomorrow, 144 उसके नीचे एग्जिट हो जाएगा, और 153 155 फॉर टुमारो। इंट्राडे ट्रेड आपको ही दे दिया मैंने, ठीक है।
ये हो गया जोमेटो, एक्सिस बैंक, ऑल दीज थिंग्स आई हैव टेकन। दैट्स ऑल आज का सेशन जो है यहीं पे वाइंड अप करेंगे। 1 घंटा 5 मिनट का लाइव सेशन हो चुका है, सो लेट्स वाइंड अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को जो है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम सीधे मिलेंगे संडे को फॉर द वीकली एनालिसिस, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है ये तो सुपर डुपर बम्पर मेगा बम्पर होने वाला है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और जिन लोगों को जुड़ना है आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी।